हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। जो आज हम चैप्टर करेंगे 23, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी यानी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो उसके विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और काफ़ी ज़रूरी भी रहेगा। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनआईएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, role of citizen in a democracy. This is the most important here, role of citizen in a democracy. As a citizen of India, do you really appreciate there is a role of citizen in a democracy? Why is this role so important? Generally, it is believed that is the government rules the people who have to respect their political authorities and obeys it. They are there to be a government, but do not you think that this is not so their democracy? The people who are citizens in a democratic system like India cannot and out there not remain passive and treat themselves as a government. In fact, a democracy can be successful and vibrant only when a citizen imbibes and reflects and there is a mindset. There is a mindset important and think there is a behavior that is a basis value like equality, freedom, secularism, social justice, and accountability and respect for all. This have to appreciate their opportunity for their desires, role and play proactive role in the actualize there is a goal of democracy. The next year, appreciation of opportunity for a citizen's role. This is important here. The opportunity as a democratic citizens are available in all the democracies, but they vary from one democratic system to another. Indian democracy in there is a modern sense as began after the long period of the colonial rules here. Although there is a democratic system started just after independence in 1947, it is social culture settings where and still are not in the tune with the democratic rules here. And the culture also. India is a vast multicultural, multi-illegals, and truly pure society, which is in many respects still the carries that is characterized by the traditionalism. At the same time, it is tried to absorb the value of modern democracy. Even now, many think that is a government has to be rule and do everything, and if things are not happening in the expected manner, it is only their government which is to be blamed. As you know, that a democratic government in our country is run by their representative chosen by use. In that sense, every citizen is responsible for how their government functions at the different level, national level, state level, and local level. And there's every citizen has to play a critical roles and use every opportunity for doing so. As the Indian citizen are we are doing it, let us consider major opportunity for the role of citizen may be a following here. This is the most important
point here, the role of citizens here. The first here, participation. The key role of citizens in a democracy is to be a participate in the public life. The most commonly observed the opportunity of participation is exclusive, the right to be a vote during to the election. And in order to be vote, basically there it is necessary that each citizen listen to be, and now there is the view of different parties and candidate, and then makes these are here often discussions on the one to be a vote for. It is also learned that in many cases there are percentage of voting is still low. The election commission is doing its best to be educate their people about the importance of participation in election. This is the most important here, participation. And participation is a democratic politics is the however is not confined simply to the participation in the election only. A vital form of participation come through the membership of political parties, and more importantly is actives is a membership in the independence is a non-governmental organization that now as a civil society organization, and this organization represent a variety of interests of different groups such as a women, students, farmer, workers, doctor, teacher, business owner, religious behaviors, human right activists here. This is the most important. Such organization and the peoples as a movement help to bring the political awareness about the different issue among the people. This is important. And the next year, making the system accountable. Participation in the political process is not enough. Citizens have to make their democratic system responsive and responsible. The constitution makes their executives responsible to be legislatures, but citizens are needed to be ensured that is a parliamentarians and member of state legislatures, and there is a representatives in a panchayati raj and municipal institution are accountable. The instruments is created by the Right to be Informed Information Act 2005 is our country, enable to citizens to play there is a role effectively. Citizens have an obligation to be become informed about the public issue and to be watched carefully how there is a political leaders and representative use their power, and to be express their own opinion and interest when a citizen find that a government is not living up to its promise, and they can be point it out through the media and make a recommendation and demanded accountability from the government. If the government still fail to be fulfill promise, a citizen may be protest carry out a peacefully satyagraha and civil disobedience and non-cooperation campaigns to make the government accountable. This is the most important here, a protest here. The next year, fulfillings of obligation. This is the most important fulfilling obligation here. We should be realized that a citizenship is more than voting or making their system accountable. Many people tend to be regard democracy as a system where electorally here and everything is allowed, and every person has the freedom to do whatever one the desire. This often leads to be a complete chaos that is a devastate and the order of their society rather than to the improving it. In that way, it is a lead to be a opposite effect of their democracy. A citizen has to be accept that a freedom is never absolute. If you have a right to be do 10 of things, you have also the responsibility to the ensure that your action do not interference upon the right of other. This is important here. नियम तो कहीं भी बनाई जा सकती है, नियम बनाने में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन मेन मुद्दा उठता है नियम को पालन करना। कहते हैं ये सभी देशों का प्रॉब्लम है कि सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन जिनके लिए बनाए जाते हैं वो रूल रेगुलेशन पे वो खड़े नहीं उतरते हैं। और देखा जाए जिस देश में लोगों ने रूल रेगुलेशन को जो है माना है, समझा है, वो देश जो सदैव है तरक्की पे ही
रहा है। हमारा अगला टॉपिक इन्हीं बातों की तरफ इशारा कर रहा है कि लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए और इसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए। भारत के नागरिकों के रूप में क्या हम लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका को सही ढंग से समझते हैं और यह भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सामान्यतः ये समझा जाता है कि सरकार लोगों पर शासन करती है और लोगों को उसकी सत्ता का आदर करना चाहिए और लोग शासित होने के लिए जो देखा जाए तो लोग शासित होने के लिए ही है। लेकिन क्या आप ये नहीं सोचते हैं कि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। भारत जैसे लोकतंत्र प्रणाली में नागरिकों को न तो निष्क्रिय और न ही शासित समझाना चाहिए। वास्तव में लोकतंत्र तभी सफल एवं मुखर एवं बेहतर करता है जब उसके नागरिक अपनी सोच और व्यवहार में बुनियादी मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, जवाबदेही सभी के लिए आदर की जो आत्मसात एवं प्रतिबिंबित रहते हैं। कहते हैं देश वही सफल है जो इन बातों का अनुसरण करते हैं। कहते हैं प्रत्येक लोगों को इस बात को समझ होना चाहिए, समानता का, स्वतंत्रता का, धर्मनिरपेक्षता का, सामाजिक न्याय का। लेकिन जब इनके मार्गदर्शन करने वाले ही गलत हों तो जनता भी आत्मसात नहीं कर सकती है। उन्हें अपनी विशिष्ट भूमिकाओं के अवसरों को समझना चाहिए एवं लोकतंत्र के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु सकारात्मक भूमिका निभाना चाहिए। देखिए, अगर आप देश की भलाई चाहते हो तो सदैव ही सकारात्मक विचारधारा रखिए। इससे देश आगे बढ़ता है और देश सदैव आगे ही रहेगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है नागरिकों की भूमिका के अवसरों की समीक्षा करना। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। लोकतांत्रिक नागरिकों के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के अवसर सभी लोकतंत्रों में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन उनकी भूमिकाएं एक दूसरे से भिन्न रहती हैं। आधुनिक स्वरूप में भारत में लोकतंत्र का आरंभ एक लंबे उपनिवेशित शासन के बाद ही हुआ है। यद्यपि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का आरंभ हो गया था, पर भारत का सामाजिक संस्कृति परिवेश लोकतांत्रिक परिवेश के अनुकूल नहीं था। लेकिन जैसा हमने सोचा था वैसा हमें नहीं मिला। भारत एक विशाल है, बहुसंस्कृतीय है, बहुभाषीय है और सही अर्थों में बहुसंख्यक समाज भी है, और यह कई अर्थों में परंपरावाद और विशेषताओं के कायम रखे हुए हैं और दूसरे साथ ही यह आधुनिक लोकतंत्र के मूल्य को भी आत्मसात कर रही है। तो देखा जाए भारत अब भी पुराने चीज़ों को लेके ही चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के लोग पुराने चीज़ों को अभी भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आधुनिक युग में वो प्रवेश कर चुके हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है कि आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार को शासन करना है और उसे सब कुछ करना है, और यदि काम अपेक्षित ढंग से नहीं हो रहा है तो इसके लिए सरकार ही दोषी है। लेकिन देखा जाए तो सरकार जिस क्षेत्र में दोषी हो तो रहेगी, लेकिन सबसे बड़ा दोषी नागरिक स्वयं है। और मान लीजिए आप कह रहे हो कि देश में गंदगी फैली हुई है, अगर आप जब कूड़े करकट को इधर उधर फेंक दोगे तो गंदगी किसने फैलाई? आपने फैलाया। कहते हैं शराब पे बैन लगा दी गई, लेकिन जब आप ही पियोगे तो कोई ना कोई रूप में तो आपके समक्ष आ ही जाएगा। आप जब तक उस चीज़ को नहीं छोड़िएगा, जब उन आदतों को नहीं छोड़िएगा, सरकार कभी भी रूल रेगुलेशन को लागू नहीं कर सकता। कहते हैं बच्चों को आप कहिएगा पढ़ लो, बच्चों पढ़ लीजिए, आप कहिए मोबाइल से देख लो, ये कर लो, लेकिन जब तक बच्चा का इच्छा नहीं होगा पढ़ने का, वो एक शब्द भी ग्रहण नहीं करेगा। तो वही बात आ जाती है कि सरकार हमें बार बार डराती रहती है, धमकाती रहती है, तरह तरह के रूल दिखाती रहती है, लेकिन जब तक आम जनता का चलने का मन नहीं होगा उस रास्ते पे, वो नहीं चल पाएगी। तो इसमें सरकार कभी दोषी नहीं है। दोषी आम व्यक्ति हैं जो इस तरह की गलतियां बार बार कर रहे होते हैं। कहते हैं गलतियां कीजिएगा तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, सरकार कभी भी भुगतने उस परिणाम को नहीं आएगा। किस क्षेत्र में बाढ़ आती है तो सरकार वहाँ पर क्या बाढ़ में डूब जाती है? सरकार तो आपको पता है पहले ही ऊंचे स्थान पर चली जाती है। डूबता तो आम व्यक्ति है। जब बरसात होती है, जब कूड़ा करकट जब तैर रहे होते हैं पानियों में, तो सरकार के घर में नहीं जा रही होती है, वो आपके ही घर में दोबारा पहुंच गया होता है। तो ऐसी गलती क्यों? जब आपको पता है कि ये गलत है तो वो गलत ही है। सरकार को दोषी बार बार कह देना सही नहीं होता है। कुछ गलतियां सरकार की नहीं होती, सारी गलतियां आम व्यक्तियों की होती हैं। अगर मान लीजिए लिफाफा बैन है
अगर आप धड़ल्ले से उसको यूज़ कर रहे हो, आप मना नहीं कर रहे हो, तो जर्नल सी बात है, फैक्ट्री तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि उसको तो उससे कमाई मिलती है। और सरकार मना ही क्यों करेगी? सरकार ने तो रूल रेगुलेशन बना दिया, मानना तो आपको है। क्योंकि देखिए, बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए कुछ अच्छा करने की आवश्यकता होता है। आप जानते हैं कि हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों का लोकतांत्रिक सरकार चलाई जाती है, यानी जो आप निर्वाचित करते हो वो आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सिलसिले में भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तरों पर कार्य सरकारों के काम करने के ढंग के लिए उत्तरदायी होती है। इसलिए भारतीय लोकतंत्र के प्रत्येक नागरिक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट बन जाता है, और इसे अपनी भूमिका के प्रत्येक अवसर का उपयोग भी करना चाहिए। क्या भारतीय नागरिक के रूप में हम अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं? नागरिकों की भूमिका के लिए प्रमुख अवसर निम्नलिखित होते हैं। जैसे देखिए, कौन कौन से अवसर है जहाँ पर जो है हर एक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सबसे प्रथम तो यही आती है भागीदारी। देखिए, सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करना नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस तरह की भागीदारी करने के अवसर चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी नागरिकों को मिलता है, जहाँ पर वो अपनी सोच समझ के वोट देना चाहिए। कहते हैं ऐसे लोगों को लालच में नहीं आना चाहिए जो आपके लिए कहते हैं आगे चल के सरदर्दी बन जाए, तो ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए। ये भागीदारी आपकी होती है। बुद्धिमानी से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है, और प्रत्येक नागरिक के विभिन्न जो उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों के विचारों को सुने एवं जाने कि आखिर किसका विचारधारा सही है और किसका विचारधारा गलत है, कौन देश हित में बात कर रहा है, कौन देश अहित में बात कर रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब ये भी मत सोचिएगा कि भाई हम उसको वोट ना दे तो किसको वोट दे, किसी को तो हम वोट देंगे ही देंगे। लेकिन सरकार ने इससे भी छुटकारा पाने के लिए एक प्रावधान बता दिया है नोटा का। नोटा का मतलब जो कोई भी जो है कैंडिडेट आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी वो किसी को भी वोट नहीं जाएगा। और ये सरकार ने बहुत अच्छा प्रावधान किया है, कि सरकार भी बाद में दोष जो है खुद पे नहीं लेना चाहती है। बहुत अच्छा तरीका है, आप अपना विरोध, अपना गुस्सा इस नोटा शब्द को जो है दबा के कर सकते हो। और सरकार को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अगर नोटा सभी बहुमतों से जीत जाता है तो इसका मतलब सरकार को ये मान लेना चाहिए कि इस राज्य में जितने भी व्यक्ति खड़ा है वो किसी न किसी रूप में जो है आम व्यक्तियों के दोषी हैं, और ये स्वयं आप स्वयं कर सकते हो, और ये आपकी भागीदारी होती है। कहते हैं बुद्धिमानी से ही मत अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, और इस आधार पर हम स्वयं यह निर्णय लें कि मत किसको मिलेगा। लेकिन यह पाया गया है कि बहुत से मामलों में मतदान का प्रतिशत बहुत ही कम रहता है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मतदान का प्रतिशत बहुत कम होने का कारण ये है कि बड़े बड़े लोग जो है मतदान में सम्मिलित नहीं होते हैं। मतदान में सिर्फ सम्मिलित वो लोग होते हैं जिनको सरकार की तरफ से घर चाहिए होता है, सरकार की तरफ से APL BPL कार्ड बने होते हैं, सरकार की तरफ से कोई लाभदायक कार्य कर रहे होते हैं, तो उन्हीं व्यक्ति जो है वोट में अग्रसर होते हैं। क्योंकि सरकार भी नीतियां चलाती है कि वोट दोगे तभी आप लोगों को हम देखेंगे। बहुत से ऐसे नीतियां होती है, सरकार की नीतियां देख के समझ के आप हैरान हो जाओगे। चुनाव आयोग लोगों को चुनाव में शामिल होने की महत्ता के बारे में शिक्षित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए चुनाव आयोग जो करने की कोशिश तो कर रही है, सिर्फ कोशिश कर रही है। क्योंकि जिस तरह से सरकार जो है अपनी प्रचार करती है, चुनाव आयोग को भी जो है चुनाव में भागीदारी प्रत्येक लोगों का होना चाहिए। इसके लिए भी चुनाव आयोग को जो है प्रत्यक्ष रूप से बताना चाहिए। यद्यपि लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी मात्र चुनावों में मतदान करने या चुनाव की अन्य प्रक्रिया में भाग लेने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों एवं स्वतंत्र गैर सरकारी संगठनों के सदस्य के रूप में भी काम करना भी एक भागीदारी है। गैर सरकारी संगठनों के जो है सिविल सोसाइटी संगठन भी कह सकती हो, और ये जो है महिला, विद्यार्थी, कृषकों, श्रमिकों, डॉक्टर, शिक्षकों, व्यापार करने वाले, धार्मिक आस्था रखने वाले, मानव विकास कार्यकर्ता आदि समूहों के हितों के प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे संगठन और जन आंदोलन विभिन्न मुद्दे के संबंध में लोगों के बीच राजनीतिक जागरूकता फैलाने में भी कार्यरत होते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात है व्यवस्था को उत्तरदायी बनाना। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि व्यवस्था को उत्तरदायी कैसे बनाया जाए। राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करना ही पर्याप्त नहीं होता है, नागरिकों को लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है उत्तरदायी एवं अनुकूल भी बनाना चाहिए। संविधान में कार्यपालिका को तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, लेकिन नागरिक के लिए आवश्यकता यह है
कि वह संसद, राज्य विधायकों के सदस्य एवं पंचायती राज की संस्थाएं और नगर पालिका एवं नगर निगमों के प्रतिनिधियों को जो उत्तरदायी बनाए, यानी सभी को जो है उत्तरदायी बनाना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए साधनों का उपयोग से नागरिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। तो देखा जाए सभी रूल रेगुलेशन है, लेकिन उसका जो है बखूबी प्रयोग नहीं किया जा रहा है। नागरिकों पर जनता से जुड़े मुद्दे के बारे में सूचना प्राप्त करने की दायित्व होता है और उन पर जो है राजनीतिक नेताओं एवं प्रतिनिधियों द्वारा अपनी सत्ता का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, इसे ध्यान से देखने की दायित्व होता है और वो अपनी राय एवं हितों की व्यक्त भी कर सकते हैं। तो ये प्रावधान होना जरूरी है कि प्रत्येक जनता को बोलने का अधिकार होना चाहिए कि वो किसी के बारे में बोलता है तो जनरली सी बात जनता इसलिए नहीं बोलती है कि जनता को डर होता है कि किसी भी बड़े लोगों पे अगर उंगली हम उठाते हैं तो अगले दिन वो जेल में ही नज़र आते हैं, क्योंकि कहते हैं ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। जनता को तो सरकार डरा रखी है, इसमें मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर ध्यान देने वाली बात हो, ये हो, दायित्व हो। आप किसी के सामने बोल के देखिए, आपका सत्यमेव जयते हो जाएगा, लेकिन वही मीडिया पे बोलिएगा तो कुछ हद तक सही भी रहेगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति के सामने आप जाके बोल के देखिए। कहते हैं यही प्रावधान देश को जो है खा गया है कि जनता को बोलने का अधिकार नहीं है। अगर जनता कुछ बोलती है तो उसमें तरह तरह के जो है रूल रेगुलेशन लगा के जेल में ठूस देते हैं, लेकिन वही मंत्री लोग कुछ भी बोल दे, देश के लिए बोल दे, लोगों के लिए बोल दे, बड़े बड़े लोगों के लिए बोल दे, तो उनका जो विचारधारा होती है, बात होती है, वो जग कल्याण की बन जाती है। तो गलत है ये, जो गलत है वो सदैव गलत ही होगा, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। और जो गलत करेगा उसको सज़ा भी मिलेगा, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे कोई बड़ा मिनिस्टर हो, या कोई भी देश का मुख्य हो। जब नागरिक को लगता है कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर रही है, तब वो इस विषय पर मीडिया के द्वारा सवाल उठा सकती हैं। लेकिन आज मीडिया पर भी सवाल कौन उठाएगा? मीडिया आम व्यक्तियों के पास जाती कहाँ है? आज देखिए डिबेट भी होता है तो उसमें बड़े बड़े लोगों को ना आमंत्रण किया जाता है और जनता को सिर्फ ताली बजाने के लिए बैठा दी जाती है, और वो लोगों को बैठाया जाता है जो उनको पहले उनको सवाल लिख के दे दिया जाता है, वो अपने मन से कभी भी सवाल नहीं उठाती हैं। और जो व्यक्ति कभी कभी बोलने लगता है अच्छी बातें, तो देखिएगा जो एंकर होगा फटक से माइक इधर से उधर कर देगा। मैंने बात देखा है, टीवी पे भी देखा है कि जो व्यक्ति सही मुद्दा उठा रहा होता है, डायरेक्ट जो है एंकर जो है इधर से उधर कर देता है, क्योंकि एंकर को भी डर होता है कि कहीं किसी के बारे में गलत ना बोल दे और उसका जो न्यूज़ चैनल जो है कहीं बैन ना हो जाए। तो ये सारे सवाल उठते हैं, कोई स्वतंत्र नहीं है। यहाँ पर देखा जाए तो सब डर डर के अपना जीवन जो है व्याप्त कर रहे हैं, कोई खुला जीवन नहीं जी रहा है और सरकार इसको दबा रही, क्योंकि सरकार ही कहते हैं स्वतंत्रता लोगों को नहीं दे रखी है। सरकार से जो है संतुलियों एवं मांगों की जवाबदेही ले सकें, लेकिन मांग कौन करेगा? आम व्यक्ति की जो समस्या है, अगर वो मांग करती है तो कहते अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में कोई मंत्री जी आए हैं और वहाँ पर कोई और विधायक रहा है, अब वहाँ के बुराइयों को बता के देखिए। देखा जाए यदि सरकार तब भी वादों को पूरा करने में असफल होती है तो नागरिकों विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। देखिए आज आम लोगों के पास विरोध प्रदर्शन करने का समय नहीं है, क्योंकि जो आम व्यक्ति है जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं वो सुबह उठते हैं और मेहनत करने के लिए निकल जाते हैं। सरकार के प्रति वो विरोध कैसे करे? तभी तो सरकार आज फ़ायदा उठा रही है। लेकिन कहते हैं जितना आम व्यक्तियों को जवाबदेह होना चाहिए उतना ही सरकार को भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि लोगों ने बड़े प्यार से उनको जिताया है और उनसे कुछ आशा रखी है, तो उनके हित में ही रूल रेगुलेशन होना चाहिए और उनके ही लिए कल्याण होना चाहिए। अब विरोध प्रदर्शन आज के समय में आम व्यक्ति कभी नहीं करता है। देखिए कोई भी विरोध प्रदर्शन जो होता है पार्टी के द्वारा की जाती है और ये प्रदर्शन जो होती है उग्र हो जाती है और कई बार हमारे देश को भी जला के रख देती है। और ये तो आम बात है, ये तो आए दिन न्यूज़ का ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है कि जनता को जो है लोग भड़का रहे होते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग भड़का रहे होते हैं और इसमें भी आम व्यक्ति नहीं होते हैं, उन्हीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ता होते हैं जो इसमें सम्मिलित होते हैं। और या तो वो व्यक्ति होते हैं जो बेरोजगार होते हैं, जिनको
जो है अपद्रव्य फैलाने के लिए वो पैसे देती हैं, और ये वास्तविकता है, इसको जो है आप झुठला नहीं सकते, और ये बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है। देखा जाए तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सत्याग्रह वो महात्मा गांधी जी करते थे। आज तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। आज कोई भी व्यक्ति अगर धरना पे बैठ रहा है तो दूसरे साइड वो गलत काम भी कर रहा है। देखा जाए तो आपने किसान आंदोलन भी देखा होगा, उसमें न जाने कितना गलत काम भी हुआ, कैसे कैसे वहाँ पर कर्म हुए। इसका मीडिया ने भी बहुत ही निंदा किया, लेकिन मीडिया का काम ही निंदा करना है। तो आज सत्याग्रह किया जाता है, लेकिन उसके आड़ में गलत व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं और गलत कार्य करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब एक व्यक्ति कहीं बाहर निकलता है तो बड़े ही शरीफता के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन वही ग्रुप में होते हैं तो अपद्रव्य फैलाते हुए आगे निकलते हैं। तो समझ सकते हो कि आज सत्याग्रह करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, और इसका फ़ायदा हर कोई लोग उठा लेता है। आपने भी देखा होगा कि हमारे देश में अन्ना हजारे जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया, और उन्होंने बिल भी लाने में कोशिश किया, देश को सुधारने में भी बहुत काफ़ी अच्छा कोशिश किया, और उनके ही कई लोग जो थे मंत्री भी बने और आगे भी बढ़े। लेकिन देखा जाए तो क्या उन्होंने देश की भलाई के लिए कुछ किया? मुझे तो लगता है नहीं किया, क्योंकि कहते हैं सत्याग्रह करते उसमें बहुत से लोग निकलते हैं इस सत्याग्रह के अंतर्गत, लेकिन उनका जो है बाद में अर्थ ही चेंज हो जाता है और उनका उद्देश्य ही बदल जाता है। उनका उद्देश्य बाद में जब कुछ हासिल हो जाता है तो उनको चाहिए और हासिल करने की लालसा उनको बर्बाद कर देता है, और इसमें कोई दो राय नहीं, सच्चाई है। आप भी जो है न्यूज़ पलट के देखिए, समझिए और समझ जाइएगा सारी बातें जो हमारे देश में अभी हो रहा है। नागरिक अवज्ञा या असहयोग अभियान चला सकते हैं ताकि सरकार को तो दायित्व बनाया जा सके। आगे हमारे समक्ष है दायित्व की पूर्ति। हम इस बात को समझना चाहिए कि नागरिकता मतदान करने या व्यवस्था को जवाबदेह बनाने से कहीं बढ़कर है। कई लोग लोकतंत्र को ऐसी प्रणाली मानते हैं जहां प्रायः सभी चीज़ों की अनुमति होती है। प्रत्येक व्यक्तियों को ये स्वतंत्रता होती है कि वह जो चाहे कर सकती हैं, या इससे अक्सर समाज की हालत बेहतर होने के बदले पूरी तरह से जो है अव्यवस्थित एवं तबाह हो जाती है। कहते सबका मतलब एक ही होता है, अच्छा करना होता है, लेकिन जनरल सी बात है, अच्छे में कुछ बुराई भी छुपी हुई होती है। प्रत्येक नागरिक को यह स्वीकार करना चाहिए, स्वतंत्रता कभी भी निरपेक्ष नहीं होती है। यदि आपको कुछ कार्य करने के अधिकार प्राप्त होते हैं तो आपका दायित्व भी है कि आप सुनिश्चित करें कि आपको कार्य के दूसरे कार्य से कैसे अधिकार प्रभावित न हो। यानी आपको दायित्व अगर ये है कुछ करने का, तो इससे कोई दूसरा व्यक्ति अधिक प्रभावित न हो, क्योंकि सबका जो जीवन शांतिमय होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यही जीवन का दायित्व है, सत्य है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप देश कल्याण के अंतर्गत जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जो है समझदार बने, अच्छा बने, देश का नागरिक बने, जागरूक नागरिक बने, और देश के लिए जो वोटिंग करे और देश को आगे अच्छा बनाए। क्योंकि हम ये शब्द कभी भी नहीं सुनना चाहते, विकासशील कभी नहीं हम बनाना चाहते देश को, हम विकसित बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे में वो सारी क्षमता है जो पूरा दुनिया से भी बेहतर क्षमता है। Our next topic is the most important here, proactive role to be actualized of correctives measuring. This is the most important topic arrive here. For a successful working of a democracy, citizen as a participant is a most. The correctives measuring to be meet the challenges can be actualized only when the citizens play a protective role. The citizen must be respect the law and reject violence. Every citizen must be respect the right of his or her fellow citizens and their dignity as a human beings. Now
No one should be a defense on the political opponent as evil just because of the holding different view. People should be caution the discussion of their government but not reject the government's authorities. Every group has the right to a practice, to be culture, and to be have some control over its own affairs. But each group should be accept that it is a part of a plural society and democratic state. When you express your opinion, you should be also listen to the view of other people, even people you disagree with. Everyone has a right to be heard when you make a demands. You should be understand that in a democracy it is impossible for everyone to achieve everything one wants. Democracy requires mature cooperation, and groups with a different interest and opinion must be willing to be sit down with one another and negotiate here. If one group is always excluded and fail to be heard, it may turn against a democracy in the anger and frustration. Everyone who is willing to be a participate peacefully and respect the right of others should be have some say in the way the country is governed. That's important. आगे जो हमारे समक्ष आया है सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन के लिए सकारात्मक भूमिका, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों की भागीदारी जरूरी है और ये पहले भी हम इसका वकालत कर चुके हैं। कहते हैं चुनौतियों का सामना करने के लिए सुधारात्मक उपाय तभी क्रियान्वित हो सकते हैं जब नागरिक सकारात्मक भूमिका निभाए, क्योंकि नागरिकों को सकारात्मक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा है, जब तक नागरिक समझदार नहीं बनेंगे तो वह सरकार समझदार कभी हो ही नहीं सकती। नागरिकों को कानून का आदर और हिंसा का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो नागरिक ही हिंसा का सहारा लेती है। अगर वो कानून का आदर करे तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और प्रत्येक व्यक्ति को जो है कानून के दायरे में रह के ही अपना कार्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक को अपने सह नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी के अधिकारों का सम्मान नहीं करती है, जो कि बहुत बड़ी विडंबना होती है। और अपनी मानवता पर जो है गर्व करना चाहिए कि हम मानव हैं और किसी को भी राजनीतिक विरोध को केवल इसलिए अपमानित नहीं करना चाहिए कि उसके विचार अलग हैं। कहते हैं ये दुनिया है, दुनिया में सबका विचार अलग है, सबका विचारधारा अलग है, लेकिन सत्य है वही सत्य है। लोगों को चाहिए कि वो सरकार के निर्णय पर प्रश्न उठाएं जरूर, लेकिन सरकार के अधिकारों का अमान्य नहीं करना चाहिए। अगर सरकार गलत कर रही है तो उसमें प्रश्न उठाइए, लेकिन उसको अमान्य नहीं करना चाहिए। बहुत से हमारे मंत्री में ऐसे मंत्री हैं जो अपने देश के रिप्रेजेंटेशन वाले व्यक्तियों को गलत कह के पुकारते हैं और ये गलत है। कहते हैं अगर इतने नागरिकों ने किसी को उच्च पद दिया है तो किसी मंत्री को उनके प्रति गलत आदर भावना रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो न्याय द्वारा उसको जो है कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, लेकिन कौन कहे? कहते हैं सब तो उन्हीं का ही है, कौन किससे बात करे। प्रत्येक समूह का अधिकार होता है कि वह अपनी संस्कृति को अपनाएं और इसका अपने मामलों पर कुछ नियंत्रण भी हो, लेकिन प्रत्येक समूह को यह भी स्वीकार करना चाहिए कि वह एक बहुसंख्यक समाज एवं लोकतांत्रिक राज्य का हिस्सा है, क्योंकि भारत जो है बहुसंख्यक है, बहुसंख्यक समाज है और लोकतांत्रिक है। तो इसको समझना चाहिए और प्रत्येक लोगों को विचार करने की आवश्यकता रहती है। जब आप अपनी राय व्यक्त करते हैं तो आपको अन्य लोगों के विचारों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जनरल सी बात है, कोई दूसरे के विचार को सुनता है तभी समझ में आता है कि आखिर क्या चल रहा है, चाहे लोगों का मत आपसे भिन्न ही क्यों ना हो। प्रत्येक का यह अधिकार होता है कि उसे सुनना चाहे। जब आप कुछ मांग करते हैं तब आपको यह समझना चाहिए कि लोकतंत्र में मनचाही सब चीज़ें प्राप्त करना असंभव है, कि जो आप चाह रहे हो सब कुछ नहीं मिल सकता। लोकतंत्र में आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है। यदि किसी समूह को हमेशा बाहर रखा जाता है और उसे सुना नहीं जाता है तो वह गुस्से एवं प्रतिशोध के कारण लोकतंत्र का विरोधी बन जाता है, और ये हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने का इच्छुक होता है
और अन्य लोगों का सम्मान भी करता है। उसे अधिकार होना चाहिए कि सरकार देश के किस प्रकार चला रहा है और उसके बारे में अपनी राय भी वो व्यक्ति दे सकता है।